Sunday 26th of May. Franklin and I are at Narkanda. We just started off from the bus stand. We are walking to the Hathu Valley homestay. It's supposed to take us 37 minutes as per Google. We arrived at Narkanda at what time? Around 7:30 in the morning. And we had breakfast. I had an aloo paratha, 2 teas, and we've decided to walk to the homestay because the check-in starts only at 12. Spoke to the guy and he said we can come and hang around there. So we've decided to walk. I've consolidated my 2 bags into one. So I'm carrying about 17.4 kilos. Carrying this weight after a very long time. Luckily there's no uphill. So I'm quite happy. It's a beautiful morning, beautiful summer morning. No clouds, no haze, bird song. That's how the road looks. So we get off the main road here and heading for the Hathu Valley homestay. We saw the sign, so we're on the right track. Always good to know. We are almost at Hathu Valley homestay. I can see the building. Your destination is on the right. Hello ji, कैसे हैं? Good morning. Hathu Valley homestay, पहुंच गए. We are having a welcome tea at Hathu homestay. We just met the owner and the current incumbents of the room that we are supposed to stay in, checking out. He has to clean it, but this is such a beautiful place. Franklin is having his chai there. Cheers. That is the inner room. You can see, I think this is the common room. You can see the stove, and this is our sitting area where we are sitting. Very quiet. Orchards outside. This is the common kitchen dining area, I presume. This is the reception area. Nice view down there. नीचे ये गार्डन जग पर जाती है या गार्डन जाती है नीचे से? नहीं, वो बाहर से जाना पड़ता है. अच्छा अच्छा. नीचे कहाँ जाती है? ये तो हमारा किचन. ओ आप किचन है, ठीक है. गार्डन में घूम के आता हूँ. हाँ, कोई नहीं.
ये बाहर से गेट लगा हुआ है। हाँ हाँ ओके। ये वाला अच्छा ये वाला गेट से, अच्छा। That's the way we came in. This dirt road. This has been paved, I believe, now. This leads to the garden. Go down some steps here. Wow. Fantastic views as you go along. Look at that. Wow. Pretty flowers there. Again, so much bird song. It is so soothing. Little swing here. So this is the netting that almost all the owners of the orchards here are using. ये है हमारा कमरा। अच्छा, थैंक यू। आपका नाम? सीता। सीता। थैंक यू सीता। This is the room here. Beautiful. View from one of the windows looking down into the valley. The washroom. Very nice. Ceiling. And as you exit the door, come on this beautiful space to sit around and
It's about 6:30 in the morning on the 27th of May 2024. We are walking on the road just below Hatu Valley Homestay. We came out birding about an hour ago, and as you heard, the birds are all around me. They are hard to spot. Most of them are small birds, but we did manage to get photos of some of them. Not an easy task. The light has not been the best. We had to use pretty high ISO. But as they say, it is what it is. There is a stone crushing plant at the lowest point of the road, but at this time of the day, it was quiet here as well. I saw a pheasant a little while ago, so I'm trying to see if I can locate it again. Perhaps. Oh. Wow. It was probably a magpie. But beautiful. Anyway, this is a nice little hike, little uphill here in this sort of a gully. Nice change from the road. But I can see some heavy machinery has been up this trail, probably one of those earth moving machines, because if you look at the, looks like something with a tread has made its way up here at some point. Seems to be a little hollow here, flattish space. Oh, just come up that. This must be home to a lot of bird life and perhaps some other wildlife as well. The air is so fresh here. It's green and it's really nice. Haven't managed to see that pheasant yet. I think it just kind of heard our sounds and streaked away. It's not easy photographing birds. Extremely tough. You have to have lots of patience. You have to be quick on the draw when you see a movement. And of course, the bird has to oblige a little. The bird has to do its bit by staying still, even if for a fraction of a second. Although that is the challenge for all these things to come together. You know, the lighting, the bird, your readiness, your how sharp-sighted you are. There's so many things that come into play. It's really hard. Believe me. Yeah.
was an absolute delight to spend 3 nights and 2 days at the Hathu Valley homestay. And if you are considering a visit to this charming little place, here are the owners, Sukhdev and Shashi, who will explain how they run this place. Okay, good morning. मैं हाटू वैली होमस्टे से बोल रहा हूँ. गांव टिंगरी, गांव टांगरी, और ये नारकंडा से कुछ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. और ये बहुत ही बढ़िया होमस्टे है. इनके जो मालिक है श्री सुखदेव डोगरा और उनकी धर्मपत्नी शशि डोगरा के साथ कुछ हमें प्रश्न है कि इस होमस्टे के बारे में. हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया हुआ. हम बर्डिंग के लिए आए थे यहाँ पे, नॉट एक्चुअली बर्डिंग के लिए, ऐसे ही घूमने आए थे. और ऐसा हो गया कि इस इलाका है जो बहुत ही बढ़िया है बर्डर्स के लिए. इनफैक्ट मैं और मेरा दोस्त हु इज़ अ वेरी कीन बर्डर, हमने काउंट किया 29 स्पीशीज़ हमने देखे, अलग अलग स्पीशीज़. हर रोज़ हम यहाँ वॉक के लिए जाते थे सुबह सुबह, और वही वॉक्स में टोटल 29 देखे. तो इफ़ यू आर अ बर्ड वॉचर, बर्डिंग में इंटरेस्ट है, आपको शांति पूर्ण जगह रहना है, सिंपल खाना, लेकिन बहुत अच्छे इनके जो ओनर्स है उनसे कांटेक्ट कीजिएगा. उनका वगैरह नंबर बाद में देता हूँ. बट तो फिर शुरू करता हूँ मैं आपसे फिर से कि आपने कब शुरू किया? हमने ये होम स्टे 2010 में शुरू किया था. हाँ जी. तो चलाते चलते आज 13 साल हो गए. हाँ. तो 13 साल से मैं और मेरे हस्बैंड इसको चला ही रहे हैं. हाँ. तो बहुत एक्चुअली अच्छा इसको शुरू करने का एक हमारा जो आइडिया था, वो ये था कि 10 साल पहले 13 साल पहले हमारे बच्चे स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे. तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही यहाँ पर घर पर होते थे. घर, ये मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है. तो ये सर्विस पर जाती थी, मैं अपने बिजनेस के लिए जाता था. तो शाम को जब हम आते थे तो हमारे को टीवी देखने के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं आती थी. हम टीवी देखा, गपशप कितनी मारेंगे, सो जाते थे. आइडली नॉर्मली कोई ऐसा रूटीन नहीं था. तो हमारे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम थोड़ा सा बिजी भी रहें. एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा सुबह शाम का टाइम है वो हमारा थोड़ा उसमें निकले और एक एडिशनल इनकम भी हो जाए. और मोर ओवर ये है था हमारा कि भाई हम थोड़ा, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाते थे, तो हम थोड़ा अलग अलग लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करें. लोग आएंगे तो हम उनको अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे, अपने फ्रूट्स की जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है उसको सेल करेंगे. तो हमने सोचा, हमने वो कमर्शियली नहीं सोचा, थोड़ा सा एक अलग सा आइडिया लेके तो हमने ये शुरुआत की थी. 2 रूम से पहले शुरुआत की. हमारे जो होम स्टे में जो गवर्नमेंट ने हमारा ये होम स्टे रजिस्टर्ड किए हैं, वो बेसिकली विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए. तो उसमें क्या है कि टूरिस्ट का ये फायदा होता है कि एक तो उनको फैमिली के साथ रहना मिल जाता है, और गांव में इंटीरियर में जाकर लोकल कल्चर को वो देख पाते हैं. और फ्रूट्स जो हमारे मेन इंडस्ट्री है हिमाचल के, अपर हिमाचल की, डिस्ट्रिक्ट शिमला की, तो हमारे फ्रूट जो है वो उनको फ्रेश भी मिल जाते हैं. क्योंकि वो हमारे ऑर्चर्ड में देखते हैं तो वो फार्म पिक बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो वो डिमांड करते हैं, हमारी चेरी बिक जाती है, कुछ हमारा सेब बिक जाता है. तो इस तरह से तो हमने ये सोचकर हमने ये शुरुआत की थी. चलते चलते जब हमने शुरू किया तो हमने अपनी कोई वेबसाइट नहीं बनाई, हमने कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की. तो कैसे ये वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर लोग आते हैं. हाँ जी, जो भी हमारे पास आता था वो उसने उनके रेफरेंस से किसी दूसरे को बोला, तीसरे को बोला. इसी तरह से पिछले 10-12 सालों से हमारा ये कंटिन्यू रन कर रहा है. और हमारा जो सिस्टम है, हम थोड़ा उस क्राउड को अवॉइड करते हैं जो थोड़े बच्चे बेचारे कुछ ऐसे आते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा एंजॉय चाहते हैं, जैसे कोई ड्रिंक करना या वो थोड़ा उस क्राउड को हम अवॉइड करते हैं. हमारी प्रेफरेंस रहती है कि भाई एक नेचर लवर और पीसफुल के लिए, एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए, लोकल फूड को एंजॉय करने के लिए, लोकल कल्चर को एंजॉय करने के लिए जो आता है वो हमारी प्रेफरेंस रहती है. तो मोस्टली हमारे पास फैमिलीज बहुत सारी आती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना
पीस के लिए आते हैं, या फिर थोड़ा कल्चर को देखने के लिए आते हैं, या थोड़ी हमारी लोकल जो ये है इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली यही रहती है। और आपकी सीजन कब से खुलती है और कब खत्म होती है? एक्चुअली टूरिस्ट सीजन हमारा थ्रू आउट ईयर चलता है जी। अच्छा, आप ओपन है थ्रू आउट द ईयर? हाँ, थ्रू आउट द ईयर। कोई विंटर में भी यहाँ आना चाहे बर्फ में, हाँ, तो आप यू आर ओपन टू इट? हाँ, वी आर ओपन टू इट। सिर्फ क्या रहता है कि अगर बाई चांस कभी हैवी स्नोफॉल हो जाए तो नेशनल हाईवे शिमला टू नागढ़ में बंद हो जाता है, तो हमारे रोड तो ऑब्वियसली बंद होंगे ही। तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एनएच पर पहले खोलने की रहती है, उसके बाद लिंक रोड खोले जाते हैं। जब रोड खुल जाते हैं तो हम ऑलवेज ओपन। हाँ जी, वी आर ऑलवेज ओपन। तो विंटर में लोग बर्फ एंजॉय करने आते हैं, समर में अपना समर का जो एनवायरनमेंट है और ये टेम्परेचर जो हमारा हार्डली 20 या 22 डिग्री सबसे अप रहता है, इससे ऊपर हमारा टेम्परेचर कभी नहीं जाता। अच्छा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाए तो 25 डिग्री, इससे ऊपर कभी नहीं जाता। तो ये सब हमारा अभी तक चल रहा है। हम लोकल फूड सर्व करते हैं, लोकल जो हमारी। और आपके ऑर्चर्ड में कौन सी फल आप? हाँ, मोस्टली हमारे वैसे तो चेरी और मेन हमारा चेरी एंड एप्पल का है। और ये एप्पल का कौन सी वैरायटी है? एप्पल में मेन तो हमारा रॉयल और रेड डिलीशियस रहता है। बाकी वैसे फ्रूट सारे होते हैं, गोल्डन डिलीशियस होता है, रेड। और चेरी का कब, मतलब वो चेरी मेनली मई और जून में होता है, और जून लास्ट तक ये खत्म हो जाता है। और सेब का सीजन मोस्टली जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, लोअर एलिवेशन से 6,000-7,000 फीट की हाइट में। हमारी ये एलिवेशन 9,000 फीट है। हमारा अगस्त और सितंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आपके जो टैरिफ है उसमें आप ब्रेकफास्ट देते हैं और डिनर देते हैं? हाँ, एक्चुअली हमारा जो टैरिफ है वो हम इंक्लूड करते हैं, MAP रखते हैं, जिसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। अच्छा। और सिर्फ ये हमारा एक है कि भाई हम वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं, नॉन वेज हम नहीं बनाते, क्योंकि हम खुद प्योर वेजिटेरियन हैं। जी जी, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। खाना हम खुद बनाते हैं। खाना हम खुद बनाते हैं जी। तो ये आप लोग खाली 2 जन है जो इसको रन करते हैं और एक हेल्प है शायद? हाँ, वो हेल्पर सिर्फ वो साफ सफाई के लिए एक हेल्पर है, बाकी हम खाना खुद बनाते हैं, सर्विस हमारी खुद रहती है। और टोटल रूम्स कितने हैं अभी आपके? रजिस्ट्रेशन के मुताबिक एक्चुअली हमने मतलब पहले गवर्नमेंट ने 3 रखे थे, अब बढ़ाकर 1 रूम और बढ़ा दिया, तो हमारे पास 4 रूम है। 4 रूम है। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी बुकिंग करने के लिए आप डायरेक्ट प्रेफर करते हैं या आपके थ्रू एजेंट्स भी आते हैं, या मोस्टली वेबसाइट? हाँ जी, वेबसाइट कोई नहीं है। एजेंट हमसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप हमसे जुड़ें, तो उनके थ्रू भी बुकिंग आती है हमारे पास, और हम डायरेक्ट भी बुकिंग लेते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसे है कि आपको ढूंढ निकाले हैं और आपको वहां पे डाल दिए है, जैसा हमारा एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैं वो वेबसाइट के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी, एक्चुअली गूगल में डाला है, हाँ, वगैरह रिव्यू लोगों ने डाले हैं, उसके बेस पर भी लोग इंक्वायरी करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब ये पूछना जरूर प्रेफर करते हैं कि आपका पर्पस क्या है। क्या? क्योंकि अगर वो क्राउड आए जो सिर्फ शोर शराबे और अब समझ गया करने के लिए, तो वो थोड़ा हमारी प्रेफरेंस नहीं है। वो प्रेफरेंस नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन के बाद आप आपकी फैसिलिटीज दिखा देंगे? जी, जो कमरा दिखा दीजिए आपका, जो ये मेन लिविंग रूम, और हम इसके साथ ही चलते हैं। हाँ, ये हमारा डाइनिंग एरिया समझ लो। हाँ, यहाँ पर बैठ कर समर में बाहर लोग बैठना प्रेफर करते हैं इसी एरिया में। हाँ, समर के लिए हमारा जो डाइनिंग एरिया है, लोग ओपन में थोड़ा बैठना और बाहर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये समर वाला है। और ये और यहाँ से देखिए दृश्य भी, व्यूज एकदम फैंटास्टिक है। और विंटर में लोग अंदर बैठना प्रेफर करते हैं। ये बुखारी इसको बोला जाता है। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, ये इसको बुखारी बोला जाता है। हाँ। ये फायरवुड इसमें डाली जाती है, और जब भी मतलब टेम्परेचर माइनस या 0 डिग्री के आसपास हो तो हम इसको जलाते हैं। तो लोग यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं। खाना यहीं खाएंगे, गपशप मारेंगे, थोड़ा इंटरेक्शन होगी। अच्छा, सब यही होता है? हाँ, सब यही होता है, बिल्कुल। हाँ जी। किचन हमारा इसके नीचे है। हाँ, हमारा जो पर्सनल किचन है, क्योंकि फूड हमारा
कॉमन बनेगा, जो हम खुद खाते हैं उसी को हम गेस्ट को सर्व हाँ, ये नहीं है कि आपके पास मेन्यू कार्ड है कि आप ये ऑर्डर करो, वो और चॉइस नहीं है। चॉइस बिल्कुल नहीं है। तो दर्शकों को ये जानना चाहिए कि आप जो फैमिली खा रही है वही खा रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल वही तो दैट इज अ रियल होम स्टे, फ्रेश फूड और फ्रेश फूड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, और कुछ यहाँ पे? ठीक है, बाहर चलते हैं। जी। और ये हमारे होम स्टे के रूम्स और ये लोकेशन। चलेंगे। तो ये थोड़ा सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है यहाँ से अपने रूम के लेवल। ये हमारी रूम की बालकनी है। हाँ। और ये व्यू है। यहाँ कोई नदी है नीचे या कोई नाला है? वो नाला है बेसिकली। नाला फ्रेश वाटर का नाला है, जो हमारा स्प्रिंग वाटर रहता है। हाँ। वो इकट्ठा होकर इस नाले में अच्छा। चलता है। नाले का कुछ नाम है? वैसे हमारा जो गांव है, ये नीचे जो गांव है दिखाई दे रहा है, अच्छा, उसका नाम जल है, JAL। जल। जल। तो आपका गांव वहाँ नीचे है? हाँ, ये घर नीचे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो दूर में दिखाई दे रही है जो। ठीक तो है, इसको जल नाला ही बोला जाता है। जल नाला। ओके। ये हमारी चेरी टेबल है, ये हमारी चेरी है। चेरी के पेड़। तो ये जो नेटिंग डालते हैं आप, इसका क्यों डालते ये हैं? एंटी बर्ड्स है जी। इसमें Birds। बर्ड्स बहुत सारे आते हैं जो बिल्कुल नुकसान करते हैं। और फिर ये हेल रेन भी होता है, हाँ। ओला जो आता है, उसकी अच्छा। प्रोटेक्शन के लिए इसको डालना है। तो बर्ड्स तो नीचे से भी घुस सकते हैं उसका, हाँ? लेकिन अच्छा, वैसे इसको नीचे से भी पैक करते हैं। अच्छा, अच्छा, इसको शेप देते हैं ना जी। हाँ, क्योंकि मैं अभी 20-25 साल पहले हिमाचल में ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था मैंने। अच्छा। तो ये कुछ नया है? अब नया शुरू हुआ है जी। हाँ, कुछ सालों रिसेंट। से। हाँ, अभी तो पूरा देख रहे हैं, सारा हाँ जी। पूरा पूरी नेट माउंटेन में नेट लगाई हुई। तो जब हम आ रहे थे नारकंडा से उस दिन, तो आई वाज वंडरिंग क्या क्या चक्कर है। फिर को थोड़ा, खाने वाला रात को भी आता है ना जी, एक जानवर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे ये नीचे से पैक करना पड़ता है। ओके ओके। तो ये चेरी है आपका, ये वाला। और सेब कहाँ है? सेब नीचे, वो साइड पे है। नेटिंग लगी है। हाँ हाँ, इस सेब के पेड़ ठीक है। तो ये बाहर बैठने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ आप चाय पियो, एंजॉय करो व्यूज़ के, है। तो वो जो हमारा दोस्त फ्रैंकलिन वहाँ बैठा है कब्र के वो एंजॉय कर रहा है। अच्छा, और ये कमरे है? नहीं, हाँ, ये अभी लोग अभी चेकआउट किए हैं, तो थोड़ा इनको अभी मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। बट यहाँ ये फ्लोर पे 3 कमरे हैं, और इसके ऊपर और ऊपर, एक फैमिली हाँ। सूट है, 2 रूम इंटरकनेक्टेड। अच्छा अच्छा, 2 रूम इंटर कनेक्टेड है ऊपर वाले में। ओके, हाँ हाँ, चलो दिखा देते हैं। तो हम जाते हैं ऊपर, अपर फ्लोर, वो फैमिली रूम देखने के लिए। जैसे किसी ने फैमिली में खेला होगा, हाँ, ये होते हैं। तो ये रहा इनका फैमिली रूम। बड़ा सा बहुत शानदार कमरा, आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा बेड, इसमें तो 4-5 लोग ऐसे आराम से सो सकते हैं। सेकंड रूम इधर है जी। अच्छा, ये कनेक्टिंग है। हाँ, ये कनेक्टेड। और ये दूसरा रूम है, बहुत इंटरकनेक्टेड। यहाँ से भी अच्छा विंडो का व्यू है। ये सारे स्टोरेज कबर्ड्स हैं यहाँ पे। 2 कुर्सियाँ हैं, आपके पावर पॉइंट्स हैं, और अच्छा, टॉयलेट वहाँ पे। हाँ, वॉशरूम भी है। और ये 2, तो ये शेयर करते हैं इसको। हाँ, ये हाँ। क्योंकि ये फैमिली रूम है। हाँ, तो ये आप दूसरों का नहीं देते? दूसरे मतलब नॉन फैमिली का? नहीं, कोई भी ले ले। हाँ। जिसको लेना है, जिसको 2 रूम चाहिए, वो कोई भी ले ले। हाँ। हाँ, और जिसको एक ही रूम चाहिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। अगर बाई चांस कोई ऐसा मतलब आता है 2 तो कपल आ जाए, हाँ। एक यहाँ नहीं, रहे फिर और तो वहाँ नीचे, रहता है, तो उनके लिए उनके तो नीचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
क्योंकि फिर वो आना जाना या थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। दो के लिए हो सकता अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक कमरा वहाँ है, है। हाँ वो एक्चुअली वो स्टोर रूम है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी हवा चल रही है शायद, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? तो थैंक यू वेरी मच जी, सतदेव जी और शशि जी। एंड मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस जगह से, और आशा करता हूँ कि फिर कभी आ सकूँ हमारे वाइफ के साथ। हाँ, अच्छा जी, थैंक यू, नमस्ते। I shall leave you with images of some of the birds that we saw during our stay. If you've enjoyed watching this video, do consider subscribing to my channel, Active Senior Life, and as usual, your comments are always welcome. Till next time, bye.